Okay, so this is our very first class. In this, we are going to learn about foundation of psychology, its meaning, goals, and psychology as a science. Okay, so here we see that what is the meaning of psychology. It is very important to learn about the subject, its meaning. Psychology comes from Greek word, two Greek words basically, psyche and logos. Psyche means soul or mind. Here we are using or because earlier or now also, like अभी हमें नहीं पता कि soul is present in our body or not. But in Greek, psyche means soul or mind and logos means scientific study. It is a root word of logy. When we say any subject like biology or any logy, which means a scientific study of that subject. So sorry, earlier psychology was not a scientific subject. It considered to be a more to be in a philosophical subject. So any subject which is related to mind or anything came under philosophy, not in the psychology. But after 18th century, many scientists work on this subject and make it as a more scientific study. Okay, तो अब हम इसका मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं. मॉडर्न डेफिनेशन में हम देखते हैं कि साइकोलॉजी इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर and mental processes. Here, behavior is any observable action, the any action which we can observe through our senses, through our eyes, which we can see. Okay, it is a any observable action, and mental processes or any psychological processes. Okay, which include thoughts, memory, intelligence, etc., all came under mental processes. So, it is a scientific study of behavior and mental processes. You can also read the definition of psychology by APA. From APA. So, APA is American Psychological Association. आप गूगल पे जाना, गूगल पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखना बाय APA, तो आपको एक अच्छी पूरी प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगी. ठीक है. Then we are going to learn about definition of psychology. So many scientists gave different definitions of psychology because they wanted to prove that psychology is a scientific subject, and they see psychology as a scientific subject. Okay, so first and very important, okay, you can mark these stars also here. हाँ, तो Wilhelm Wundt. It's Wilhelm Wundt. Okay, so D is silent. I practiced it on Google कि इसको कैसा pronounce करना है. तो Wilhelm Wundt is the name, and he's the father of modern psychology. Okay, he's the father of modern psychology and established the first psychology lab in Germany. Okay, now he describes psychology as the scientific study of conscious experiences. Okay, conscious experiences, conscious का मतलब होता है, देख सकते हैं, कॉन्शियस मतलब आप अवेयर हो उस चीज़ के लिए. ठीक है, अवेयर आप उस चीज़ के लिए. ठीक है, ये होता है कॉन्शियस. प्रेजेंट हो आप, कॉन्शियस हो. ठीक है, व्हेन हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान अनकॉन्शियस हो गया, मतलब उसको पता नहीं होता. कॉन्शियस इज लाइक वो अवेयर है, उसको पता है. तो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, आई होप आई मेकिंग इट क्लियर. ओके, सो नाउ he separated psychology from philosophy. Very important because I told you कि 18th century के अंदर जब scientists work कर रहे थे psychology as a specific domain, तो फिर उसमें उन्होंने बताया specific subject, तो उन्होंने बताया था कि psychology philosophy से बहुत अलग है. ठीक है, it's a proper subject, proper scientific subject. Now William James ने explain किया psychology as a science of mental life or you can say psychological life. Okay, mental is word जो है ये काफ़ी I can say a very stereotypical word है. तो आप psychological word भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने exact लिखा है, तो आप देख लेना, क्योंकि definitions में समझाने का इतना कुछ होता नहीं है. आप बस रीड कर सकते हो, आप उन्हें राइट कर सकते हो. मैं थोड़ा बहुत समझा रही हूँ. उसमें psychology is the science of mental life और he focused main on thoughts,
feelings and consciousness. Okay, now John B. Watson, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? He defined psychology as a science of behavior. He defines psychology as the science of behavior. Only observable behavior, which we also called as overt behavior. तो अभी हम इसे पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर में कि कितने टाइप्स के बिहेवियर होते हैं और क्या बिहेवियर होता है. बट अभी के लिए जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो हम देख सकते हैं, जिसे हमें पता है एक्शन, वो डिफाइन करता है साइकोलॉजी को. ठीक है. देन रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने क्या एक्सप्लेन किया साइकोलॉजी की? Scientific study of the activities. Psychology is the scientific study of activities of the individual in the relation to the environment. कि environment के relation में एक scientific study कैसे एक human environment में react करता है, कैसे वो उसका action होता है environment में. तो कोई भी isolation के अंदर रिएक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. उसका कोई बिहेवियर हम नहीं देख सकते, हम एनवायरनमेंट में उसके सराउंडिंग में ही उसका बिहेवियर देख सकते हैं. ऐसा रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने कहा था. तो आपको अगर ये डेफिनेशन ऐसा थोड़ा कीवर्ड याद रखना है तो वुड से याद रख सकते हो कि वुडवर्थ. तो ऑफकोर्स वुड एनवायरनमेंट में होता है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी. नाउ नेचर ऑफ बिहेवियर क्या नेचर होता है? बिहेवियर क्या होता है बेसिकली? तो बिहेवियर एक सिंपल टर्म में हम देख सकते हैं एज द एक्शन और रिएक्शन of a person in response to external or internal stimulus. Stimulus is like any object, anything जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करता है. ठीक है. अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ कि अपन जब किचन में होते हैं, तो किचन के अंदर जब हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, तो हम एकदम से जब गर्म चीज़ का तो एकदम से हमारा हाथ पीछे करता है. तो वो जो गर्म चीज़ है, वो जो हॉट स्टोव है या जो भी है, वो आपका स्टिमुलस है, उसने आपको ट्रिगर किया है, आपका बिहेवियर को ट्रिगर किया है, वो आपका रिएक्शन था उस चीज़ के ऊपर. ठीक है. तो साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियर है वो दो तरीके से देखते हैं. एक तो ओवर्ट बिहेवियर, जो हमने ऊपर भी देखा, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जिसे हम देख सकते हैं, विच इज़ विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल. नाउ एंड सेकेंड इज कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है? इंटरनल प्रोसेसेस, थॉट्स, एटीट्यूड विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर. जो आपके अंदर के थॉट्स वगैरह होते हैं, जो आप बाहर देख नहीं सकते हो, बाहर से आपको दिखेगा नहीं, वो बस आपके अंदर के प्रोसेसेस, अंदर के थॉट्स होते हैं, वो कोवर्ट बिहेवियर होता है. ठीक है. तो इसका ना मैंने तो नहीं, मतलब ये आपकी बुक में भी गिवन है कि ये एक फॉर्मूला होता है. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन कि हमने जो भी अभी बात की, B इज इक्वल्स टू P इंटू E. तो P यहाँ पे पर्सन है, B बिहेवियर है, और E एनवायरमेंट है. ठीक है. तो इसमें जो बिहेवियर है वो एनवायरमेंट और पर्सन के रिलेशन में होता है. ठीक है. जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी रॉबर्ट वुडवर्थ की, तो उसमें क्या था कि इन दोनों का रिलेशन होता है. तो नो बिहेवियर अकर इन आइसोलेशन में कोई भी बिहेवियर नहीं होगा, बिहेवियर एनवायरमेंट में ही होगा. ठीक है. सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. क्या फैक्टर होता है? एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, और सोशो कल्चरल फैक्टर होता है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम हमारे बायोलॉजिकल, जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री वगैरह होती है. जैसे कि मैं बताती हूँ. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था किचन का, कि जब कोई गर्म चीज़ होती है तो आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया ना कि आप अपना हाथ पीछे करो. तो वो ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक्स और हार्मोन्स भी आपका बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर में. ठीक है. तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है. टेस्टोस्टेरोन एक आपको पता है एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है. तो वो अगर किसी में ज़्यादा होता है, किसी मेल में ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है. ठीक है. या फिर फीमेल्स में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, तो बहुत कम होता है, पर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाता है. तो हार्मोन्स भी बहुत वेरी करते हैं इस चीज़ में, और सबका अलग अलग रोल होता है. नाउ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बिहेवियर में. परसेप्शन, सब ह्यूमंस बहुत अलग होते हैं, सबका परसेप्शन अलग होता है, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, तो उससे बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. हाउ पर्सन इंटरप्रेट्स अ सिचुएशंस, वेदर दे सी एज अ चैलेंज, थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी, कैन
completely alter their behavior responses. Of course, कि कैसे एक पर्सन किसी भी सिचुएशन को चैलेंज देखता है, थ्रेट देखता है, अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उससे उसके बिहेवियर का अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है. इमोशंस, बिलीव्स, एटीट्यूड, पास्ट एक्सपीरियंसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आर फीड इनटू साइकोलॉजिकल लेयर. Okay, for instance, a person, examples are very important in psychology. If you want to understand the topic or any theory or anything, just make a example of it. Okay, तो आप अगर एग्जाम्पल होगा ना तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है. हालांकि ये जो मैं आपको फैक्टर्स और ये सब चीज़ें बता रही हूँ बहुत थ्योरिटिकल पार्ट है, इसमें आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं आपको बस रीड करना है, थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए. तो इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस रिपीटेड फेलियर में डेवलप फियर ऑफ ट्राइंग विच शेप्स है अवॉइडिंग बिहेवियर. हाँ, तो होता है ना, जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और आप रेगुलरली उसके प्रिपरेशन कर रहे थे, बट वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक टाइम पे वो डर बैठ जाता है कि अब मुझे वो एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं. तो आप एक अवॉइडेंट बिहेवियर उस चीज़ का आपके अंदर आ जाता है, ठीक है. ओके, now social cultural influence is also very important. How our environment, how our society, how our surroundings influencing our behavior बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप साथ में रहते हो, आपका बिहेवियर अलग होता है. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तब आपका बिहेवियर अलग होता है, पर्सनल लाइफ में होता है आपका बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि आपका सराउंडिंग आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है. तो कल्चरल बिहेवियर, जैसे कल्चरल बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्स पैटर्न्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट वेरी अक्रॉस सोसाइटीज. अगर हम देखें कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, उनका बिहेवियर, उनका कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशंस बहुत अलग है अपनी ईस्टर्न सोसाइटी से. तो वहाँ की जो वेमेंस है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, बहुत लिबरल होती है, बहुत ही आउटस्पोकन होती है. बट इंडियन वेमेंस इतनी आउटस्पोकन नहीं होती है, बिकॉज दे नो कि उनके नॉर्म्स हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ हैं जो ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है. Now let's move to the goals of psychology. What are the goals of psychology? Okay, the first goal is describe. Describe, इसमें गोल क्या है साइकोलॉजी का? Describing a problem, an issue or a behavior is the first goal of psychology or observe. So you be know that कि अगर हमें कुछ भी होता है, कोई भी अगर पेशेंट आता है, तो हम उस चीज़ को, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो डिसऑर्डर है, उसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे समझेंगे कि वो है क्या, कि उसको प्रॉब्लम क्या, उसको इशू क्या है, ठीक है. देन हेल्प साइकोलॉजिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर. कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है. बट डिस्क्राइब इज द फर्स्ट मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी. देन अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन अ क्लास. तो उससे पता चलता है कि ऑब्जर्व करने से कि कैसे एक चाइल्ड डिफरेंट है बाकी चाइल्ड से, या वो नॉर्मल है या फिर वो अबनॉर्मल है. तो उसकी प्रॉब्लम को समझना और उस इशू में क्या है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड वाई बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस अकर. ओके, तो एक्सप्लेन कि जो आपको अभी हमने पता लगाया कि सपोज आप ओके मैं डिसऑर्डर का, अगर सपोज स्ट्रेस है, ठीक है, आपको स्ट्रेस क्या है और किस वजह से हो रहा है वो, और क्यों हो रहा है. तो एक्सप्लेन में हम क्यों समझते हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ. आपको स्ट्रेस क्या है वो आपको हमने बताया, फिर आपको डॉक्टर बताते हैं ना कि आपको अगर कोई बीमारी होती है, तो आपको फीवर या कुछ भी बीमारी होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करते हैं आपको ये बीमारी क्यों हो रही है, ठीक है, या फिर ये बीमारी क्या है, तो वही है, ठीक है. फिर एक्सप्लेन करना, ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्ट्रेस इफेक्ट्स मेमोरी. ओके, ये एग्जाम्पल है कि उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये भी बता सकते हैं. प्रिडिक्ट, और फिर प्रिडिक्ट करना कि ये चीज़ आपको वापस कब हो सकती है. अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको स्ट्रेस कब कब आगे हो सकता है. और फिर कंट्रोल, या तो आप पिल से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या फिर आपको थेरेपी दी जाती है. अगर आपको बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर आप उस साइकोलॉजी हेल्प्स टू कंट्रोल योर सिम्टम्स और योर डिसऑर्डर, ऑफ कोर्स. सो साइकोलॉजी एम्स टू चेंज, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बिहेवियर टू मेक पॉजिटिव मीनिंगफुल कास्टिंग शीट विल पीपल, ऑफ कोर्स, ठीक है. तो इसके 4 मेन गोल्स हैं. देन नाउ वी मूव टू साइकोलॉजी एज अ साइंस.
what makes subject as science. It is very important what makes subject as science. What is science is very important. तो साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है वो, आगे बढ़ते हैं. ओके बाय. ओके ठीक है. Psychology uses psychology uses systematic methods of observation, experimentation, data analysis to understand, predict behavior and mental processes. It is the very this is the very key word in this definition कि systematic methods. साइंस भी एक systematic methods को यूज़ करती है, एक प्रोसीजर यूज़ करती है. वैसे साइकोलॉजी भी systematic methods को यूज़ करती है. एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनर और किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक पूरा सिस्टमेटिक मेथड होता है. ठीक है. नाउ साइकोलॉजी यूजेस इम्पेरिकल अप्रोच. Empirical approach is very important keyword here. Empirical approach क्या होती है कि फॉर एक्सपेरिमेंट. एम्पिरिज्म जो है वो जॉन लॉक ने दिया था. जॉन लॉक एक पॉलिटिकल थिंकर है. इन्होंने बताया था कि एम्पिरिज्म क्या होता है. एम्पिरिज्म स्टेट्स दैट ओनली सोर्स ऑफ आवर नॉलेज इज आवर सेंसेस, बाई कॉन्शियसनेस. ठीक है. आप किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हो, बस आप आपके कॉन्शियसनेस पे बिलीव कर रहे हो, आप आपके सेंसेस पे बिलीव कर रहे हो. तो एम्पिरिज्म और एम्पिरिसिज्म क्या होता है कि साइकोलॉजी के अंदर आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, आपकी ऑब्जर्वेशन मायने रखती है. ठीक है. आप जो चीज़ देख रहे हो वही सच है, ना कि कोई इंट्यूशन, ना कि कुछ और. ठीक है. तो इन साइकोलॉजी एम्पिरिज्म refers to the belief that knowledge is derived from observable, measurable experiences and evidence rather than from intuition. भाई कि आप जो देख रहे हो उसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, उसी चीज़ एक्सपीरियंस और एविडेंस के बेसिस पे आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो. ओके. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. ओके. तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम हटाते हैं. एक मिनट. यहाँ पे ठीक है, इसको हटा दूँ. ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम साइकोलॉजी को हम किसी भी सब्जेक्ट को साइंस क्यों बोलते हैं. और साइंस क्या होता है. तो साइंस में क्या होता है, साइंस क्लेम्स आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस. ऑफ कोर्स कि साइंस में भी हम ऑब्जर्वेबल एविडेंस पे बिलीव करते हैं, ना कि इंट्यूशंस पे. ठीक है. एक प्रोसीजर होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, तब जाके हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं. ठीक है. सिस्टमेटिक एंड क्लियर प्रोसीजर्स आर फॉलो एंड थ्योरीज आर जनरेटेड एंड इवेल्युएटेड. जो भी थ्योरीज होती हैं उनको अच्छे से इवेल्युएट किया जाता है, अच्छे से रिसर्च होती है, तब जाके हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को साइंटिफिक मानते हैं. जब आप उस चीज़ पे बहुत अच्छे से रिसर्च करते हो, एविडेंस देते हो. तो हम साइकोलॉजी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों मानते हैं. तो साइकोलॉजी भी जो साइंस होती है, साइंस के जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, वही चीज़ें वही साइकोलॉजी में भी होती है. तो साइकोलॉजी फॉलोज एम्पेरिकल एविडेंस, जो मैं इतने टाइम से बता रही हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट पे एक मेथड से यूज़ करती है, ना कि इंट्यूशंस पे वर्क करती है, rather than ओपिनियंस और assumptions. ठीक है. एक ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स एंड डेटा rather than ओपिनियंस और assumptions. देन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है. साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिमेन अनबायस्ड. और ये बहुत ज़रूरी है. आप कहीं पे भी आपके पर्सनल ओपिनियंस नहीं रख सकते हो, आप कहीं पे भी इमोशनल नहीं हो सकते हो. ठीक है. आपको अनबायस्ड रहना होता है और आपको बिल्कुल आपके डिसीजंस पे, आपके थॉट्स पे बहुत फर्म रहना होता है. ठीक है. अनबायस्ड एंड रिलाई ऑन facts rather than personal opinions. ठीक है. Now psychology use scientific method, observation, formulation of hypothesis, experimentation, data collection, analysis, conclusion. Of course ये एक scientific methods होते हैं जो psychology यूज़ करती है. किसी भी हमें जब किसी भी चीज़ को रिसर्च करना होता है, किसी भी चीज़ को प्रूव करना होता है, तो उसके लिए साइकोलॉजी के ही साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है.
ऑब्जर्वेशन, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप जब एक ओपिनियन सेट करते हो और उस चीज़ को प्रूव करते हो कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, वही होता है कि आपने आपने सपोज कुछ एग्जाम्पल लिया कि जैसे कि हमने कुछ भी एग्जाम्पल लिया कि मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने बोल दिया कि सपोज साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, यही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इज़ अ साइंस। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। अब मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ेगी, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस। ओके, देन एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ओके, नाउ next is measurement. What measurement? Psychology use different types of tools to measure different disorders or different like एनी रिसर्च टूल्स वगैरह। तो इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इन सब के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक मैथड। ओके, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी थ्योरी उठा ली, कहीं से भी कितना भी नंबर ले लिया, नहीं, एक साइंटिफिकली हम उस चीज़ को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट, साइकोलॉजिस्ट यूज स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड रिसर्च टूल टू मेजर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इमोशंस, एटीट्यूड एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस। वेरिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन। वेरिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन का, हमने कोई भी रिसर्च ली, उसे वेरीफाई करना, उसे रीड करना, उसे टेस्ट करना और बाय अदर रिसर्चर्स, ठीक है, उसे क्रॉस चेक करना, तो वेरीफाई करना। एंड इन सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन द फाइंडिंग्स बिकम मोर रिलायबल। ठीक है, जितने ज़्यादा सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं, जितने ज़्यादा उस चीज़ पे रिसर्च हुई होती है, मतलब उतनी वो चीज़ सही है, ठीक है। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस, साइकोलॉजिस्ट कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो वही अभी हमने जब उसमें पढ़ा था गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में, उसमें प्रिडिक्शन था कि विद विद दो साइंटिफिक एविडेंस, विद दो साइंटिफिक सिम्टम्स जो हमने देखे थे, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या क्या किसी को डिसऑर्डर हो सकता है। वैसे ही इसमें बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस साइकोलॉजिस्ट कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर अंडर सर्टेन कंडीशन। So, our next topic is principle of critical thinking in psychology. So, it is very important to be a critical thinker in psychology. Being a critical thinker means आप किसी भी एविडेंस को, किसी भी रिसर्च को या किसी भी ऑब्जर्वेशन आपने जो की है उसको क्रिटिकली एग्जामाइन कर रहे हो। क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब आप उसको बहुत सोच के इवेल्युएट कर रहे हो और फिर अपना एक जजमेंट बना रहे हो, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस रेदर देन सिंपली एक्सेप्टिंग दैम। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपका कोई भी उस चीज़ पे ओपिनियन नहीं होता है, ठीक है। यू आर नॉट इवेल्युएटिंग दैट इंफॉर्मेशन, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। ओके, तो बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर इन साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका क्योंकि अगर सामने वाला इंसान
इज इन द डिलेमा और आपको उस डिलेमा से उसे बाहर निकालना है, तो यू हैव टू बी अ क्रिटिकल थिंकर. ओके, सो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ carefully evaluating information, arguments, or evidence rather than simply accepting them. Now, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है इन्होंने ना क्रिटिकल थिंकर को एक्सप्लेन किया कि क्रिटिकल थिंकर कैसा होता है. डिस्क्राइब द आइडियल क्रिटिकल थिंकर एज समवन हु इज इंक्विजिटिव, वेल इन्फॉर्म्ड, ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है. आप ये नहीं कि आप बस खुद की ही थॉट को, खुद के ही जजमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, और अगर सामने वाला इंसान भी अगर कुछ बात कर रहा है तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड कि आप उसकी पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करो. ठीक है. फेयर इन इवेल्युएशन, ऑनेस्ट अबाउट पर्सनल बायसेस एंड परसिस्टेंट इन सीकिंग वेल ग्राउंडेड रिजल्ट. ठीक है, आप ये डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही बोला गया है. ठीक है, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग के क्या स्टेजेस होते हैं? आप ऐसे ही नहीं एक जजमेंट बना लेते हो. होता है ऐसा है कि हम बहुत इजीली जजमेंट पास करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बिना उस चीज़ को इवेल्युएट करें. तो एक क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट, अंडरस्टैंड, एनालिसिस, इवेल्युएशन और जजमेंट. अंडरस्टैंड, आपके पास कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन है क्या. जैसे हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अभी कंज्यूम करते हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत सारी रेलिवेंट होती है, बहुत सारी इरेलीवेंट होती है. तो वो रेलिवेंट इरेलीवेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना क्रिटिकल थिंकिंग से ही होता है. ठीक है. आप उस इन्फॉर्मेशन को समझते हो कि ये है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या है इसका हिस्ट्री, क्या है. फिर आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो कि वो कहाँ कहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. लाइक उसको ब्रॉड लेवल पे एनालाइज करते हो. ठीक है. फिर उसके बाद आपने जितना भी सर्च किया है उस चीज़ को इवेल्युएट करते हो. इवेल्युएट का मतलब आप उस चीज़ को शेप देते हो और फिर अपना एक जजमेंट पास करते हो. ठीक है. ये स्टेजेस है क्रिटिकल थिंकिंग के. अब हम कोर प्रिंसिपल्स पे आते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के. सबसे पहले आता है स्केप्टिसिज्म. ठीक है. स्केप्टिसिज्म में क्या होता है? क्वेश्चन बिफोर यू एक्सेप्ट. ठीक है. क्वेश्चन बिफोर यू एक्सेप्ट. आप कुछ भी, किसी भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन को जब एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उस चीज़ पे पहले क्वेश्चन करो कि हाउ, वाई, वॉट. ये जो मेन है ना, इसका मेन यही है. क्या आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है. चीज़ आपको बताई जा रही है, उस चीज़ का प्रूफ क्या है, क्या एविडेंस है उस चीज़ का. ठीक है. साइंटिफिकली क्या वो प्रूवन है, या फिर बस ऐसे ही बात हो रही है. ठीक है. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्केप्टिसिज्म एंड सिनिसिज्म. सिनिसिज्म में क्या होता है? स्केप्टिसिज्म में तो ये होता है कि आप एक एविडेंस के बाद जजमेंट पास करते हो और आप मान जाते हो कि ठीक है, सामने वाला इंसान सही बोल रहा होगा. पर सिनिसिज्म में आप बस अपने ही जजमेंट पे रहते हो. आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे चाहे कितने भी अच्छे एविडेंस आपको बताए हों, बट आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हो. ठीक है. नाउ सेकेंड इज ऑब्जेक्टिविटी, बी अनबाइस्ड. ये भी हमने अभी पढ़ा हुआ था पिछली स्लाइड्स में. इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस रेदर देन पर्सनल फीलिंग्स. वही. और मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे आप एक अपना ओपिनियन दे रहे हो, ना कि आपका जो ओपिनियन है वो दे रहे हो. ठीक है. पर्सनल आपका कोई ओपिनियन नहीं होता है इस चीज़ पे, आपने फैक्ट्स के बेसिस पे बताया. ठीक है. इट रिड्यूस बायस और लीड्स टू फेयर जजमेंट. ठीक है. नाउ ओपन माइंडेडनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी. अभी मैंने पहले भी बताया था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आप सिर्फ खुद अपने ओपिनियंस नहीं रखते हो, सामने वाले के भी ओपिनियंस मैटर करते हैं. ठीक है. तो कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, willing to listen to evaluate different opinions even if they differ from your own perspectives. Okay. Accepting the limitation of your own knowledge. ठीक है. अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो उस चीज़ पे आपको ईगो पे नहीं लेना है वो चीज़ की मुझे नहीं आती. ठीक है. अगर आपको नहीं पता तो आप उस चीज़ को सीखो, या फिर ठीक है आप एक्सेप्ट कर लो. फिर विंग अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स फेयरली. ठीक है. तो इस चीज़ का भी ये इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला इंसान आपको कुछ भी बता रहा है, उस चीज़ को आप अच्छे से मेजर कर रहे हो, अच्छे से आप उस चीज़ पे बिलीव ऐसे ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. ओपन माइंडेडनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ बिलीव कर लोगे. ठीक है, मैं ओपन माइंडेड हूँ. नो, आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जामाइन कर रहे हो, उसके बाद आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो. ठीक है.
नेक्स्ट क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन में है कि आप विदाउट ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लियर नहीं है, जो कि वेग है, वेग का मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं होती, उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकते, जिसके एविडेंस प्रेजेंट ही नहीं है, जिसके बहुत कम एक दो एविडेंस प्रेजेंट है, आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ अ स्टेटमेंट इज वेग, इट इज़ इम्पॉसिबल टू जज वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्लैरिटी मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हो ना, आप लाइक ग्रुप में होते हो, आप ग्रुप में डिस्कशन वगैरह करते हो, तो आप ये ग्रुप डिस्कशंस के अंदर भी है ना, जो आप टॉपिक आपने लिया है उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आज हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। इसके हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है, डेफिनेशंस थी इसकी, इसके साइंटिफिक, ये साइंटिफिक स्टडी क्यों है ये भी प्रूवन है, ठीक है। तो इसलिए हमने उस चीज़ पे बिलीव किया, वी आर अ क्रिटिकल थिंकर। ओके, सो साइकोलॉजी, जैसे हाँ ये मैंने एग्जांपल दिया, तो वही कि आप किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके की टर्म्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अवॉइडिंग स्टेटमेंट्स लाइक एवरीवन नोज। सो ये क्या होता है कि जब जब इंफॉर्मेशन वेग होती है ना, तो आप बहुत इजीली ऐसे बोल देते हो अरे ये तो सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, मतलब क्यों आप सबको, यू शुड बी कि ये बात फिर भी पता होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। और बीइंग एक्सप्रेसिव अबाउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, जिस इंफॉर्मेशन पे हो आप, या फिर कोई भी आप जिस चीज़ रिसर्च पे आप उसी चीज़ पे हो, आप कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हो, आप बस उस चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है। बीइंग मतलब ये होता है ना कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यही है कि आप उस इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। नाउ अवॉइडिंग ओवर जनरलाइजेशन एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को जनरलाइज करके एक बॉक्स के अंदर डाल दो, उस चीज़ को जज कर लेते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी एक चीज़ के बेसिस पे, किसी एक एविडेंस के बेसिस पे आप पूरा कंक्लूजन नहीं बना सकते हो, ठीक है। यू शुड बी, आपको हर जगह से एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन बनाओ। एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा टॉपिक है जिसको आपने एक सिंपल एक्सप्लेन कर दिया, किसी को बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, इट्स नॉट डेट कि हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें भले ही वो बहुत बड़ा टॉपिक हो, ठीक है। तो अवॉइडिंग ओवर जनरलाइजेशन एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन इन एनी इन रिसर्च और इन साइकोलॉजी। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख, लोग है ना डिप्रेशन को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, हम आगे पढ़ेंगे, बट डिप्रेशन को है ना बहुत लाइटली लेते हैं, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इस चीज़ को आप ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए हो गया, शायद मैंने एग्जाम्पल दिया उससे। नाउ लॉजिकल रेलिवेंस एंड एविडेंस। Logical relevance. A conclusion is valid only when it is supported by relevant, sufficient or reliable evidence। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आप कुछ भी, जो इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ कि कोई भी कंक्लूजन है, ठीक है, कोई भी रिसर्च है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, अगर उसका कोई एविडेंस ही नहीं है तो वो लॉजिकल कैसे हुआ, ठीक है। वो तो फिर फेक है, फिर वो तो फिर रूमर हो गया ना, क्योंकि उस चीज़ का कोई लॉजिकल एविडेंस ही नहीं है, तो उसका कोई रेलिवेंस भी नहीं होगा, ठीक है, वो रेलिवेंट ही नहीं होगी चीज़। हमने जब अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे साइकोलॉजी का, तो उसके अंदर हमने रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी। रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि जब आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हो, वो बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई होती है, मतलब बहुत सारे लोगों ने भी उस पर रिसर्च की होती है, तो इसका मतलब वो चीज़ रेलिवेंट। अगर आप कोई भी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है तो आप उस चीज़ पे ऐसे ही नहीं बिलीव करते, क्योंकि उस चीज़ का कोई रेलिवेंस नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका वही है कि लॉजिकल रेलिवेंस, एविडेंस, सपोर्ट और कंक्लूजन। तो लॉजिकल रेलिवेंस, अगर कोई चीज़ रेलिवेंट है उसकी एविडेंस की वजह से वो कंक्लूजन को सपोर्ट करती है, ठीक है। स्पॉटिंग लॉजिकल फैलेसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन आई है और उस इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना, आप
को मिसलीड करती है, आपके आर्गुमेंट को वीक करती है। तो वही है, लॉजिकल फैलेसीज का मतलब ये होता है एरर और एविडेंस दैट मेक एन आर्गुमेंट वीक और मिसलीडिंग। ठीक है, इसके दो फैलेसीज है, एक तो एड होम, इट्स HOMI, ठीक है, होमिनम फैलेसी। इसका मतलब कि हम आर्ग्यूमेंट पे काम ना करके हम उस इंसान पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन ए दो। अभी जो पर्सन है ये बोल रहा है कि वी शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, इसने सही बोला है, पर पर्सन भी बोल रहा है डोंट लिसन टू हिम, ही फेल द कॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ, है ना? ये तो फिर मतलब इस इंसान को आर्ग्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इसको टारगेट करना है। तो यही होता है एड होमिनम फैलेसी का मतलब। सेकंड है अपना स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर हम LGBT की बात करते हैं तो हम उस पर डिस्कशन करें, कोई उस चीज़ को बहुत एक्सेजरेट कर देगा, कोई उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देगा। ठीक है, जबकि वो चीज़ इतनी बड़ी है नहीं। तो वही है मिस रिप्रेजेंटिंग और एक्सेजरेटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट सो इट बिकम्स ईजियर टू अटैक। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे पर्सन है वो पर्सन है, ठीक है, स्कूल शुड गिव स्टूडेंट्स लेस होमवर्क। पर्सन ए ने ये बोला, ठीक है, तो पर्सन भी क्या बोल रहा है, सो यू आर सेइंग स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी एट ऑल। अरे, तो ये वही हो गया ना कि आप उस चीज़ को बहुत एक्सेजरेट कर रहे हो, ये बात इतनी बड़ी है नहीं, आप उस चीज़ को बड़ा बना रहे हो। अभी हमने जितना पढ़ा ये फर्स्ट क्लास थी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी की। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, ब्रांचेस एक्सेट्रा सब पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक द सेशन, और दिस इज़ माई फर्स्ट सेशन, सो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ बी काइंड एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी डाउट्स वगैरह आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल वर्क ऑन इट। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। हाँ,